Hi, good morning, good afternoon, good evening, dear 12th standard students, whenever you are watching this lecture. Before I commence, I wanted to tell you a couple of things about economics of 12th standard. Students, the first thing is that economics is one of the most important subjects from point of view of real life knowledge. In real life, you are actually going to use economics. As we go through this curriculum, you will say, हाँ सर, ये तो मेरे पापा मेरी मम्मी अपने बिजनेस में यूज करते हैं. हाँ सर, ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती है. यस, मैंने कल ही टीवी में रिपोर्ट पढ़ा था कि ऐसा ऐसा हो रहा है. यस, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन यहाँ पे डिमांड सप्लाई सिचुएशन खराब हो गया. नॉट ओनली पीपल आर नॉट डिमांडिंग, पीपल आर नॉट सप्लाइंग. ओके, so students, you will be able to correlate this with real life. This is very interesting and you can become a very good businessman if you have a good knowledge of economics. Number two, from point of view of professional courses like CA, CS, CMA, MBA, economics is very important because in the first level economics is in curriculum of all these courses. Okay, CA, CS वाले जो भी students है ध्यान से सुनो. Accountancy, mathematics and economics for CA and economics for CS. These are the most important subjects that you have in 12th standard which are common in CACS. Okay everyone, so इस subject के ऊपर आपको बहुत focus करना है. Also point number third, from examination marks, from viewpoint of scoring marks, this is a very important area. Predictable questions are asked. I'm going to tell you what are important questions. वही questions आएंगे, वही repeat होता है. You can easily score 95 plus. I have scored 90 plus by studying at last minute in economics. I had joined a class और उससे भी better notes मैंने अभी बनाए हैं आप लोग के लिए. I don't want to boast, but look students, I'm a teacher of CA, CS, CMA students from last 15 years. My knowledge of economics is in depth, and the way I teach and the way I have my mega charts and charts, you're going to love it. You're going to find it very interesting. Okay, ये देखो students, ये रहे कुछ मेगा चार्ट्स जो हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. जस्ट लुक एट ऑल ऑफ दिस. ओके, टेल मी, डोंट यू फाइंड दिस इंटरेस्टिंग? Just look at this everyone. Okay, so this is a mega chart on utility. These are the types of wants. This is utility area. बहुत interesting everyone. Just look at all of this. Okay, so you are going to love this. बहुत interesting area है economics. Then these are the mega charts of the chapter of demand and supply. So these are huge files, heavily loaded. इसीलिए इसको लोड होने में टाइम लग रहा है. You're going to just love it everyone. बहुत इंटरेस्टिंग है इकोनॉमिक्स, मैं आपको क्या बताऊं. एंड मैंने इतने स्पेशल आप लोग के लिए नोट्स बनाए हुए हैं. ये देखो, दिस इज एंटायर इलास्टिसिटीज इन वन ह्यूज मेगा चार्ट. ओके, पूरा का पूरा कंसेप्ट, पूरा एक चैप्टर ये चार्ट्स के अंदर मैंने डाला हुआ है. ऑल राइट, सो लेट मी नॉट बोर यू एंड लेट मी गेट राइट इनटू द करिकुलम. तो स्टूडेंट्स, जो हमारा 12th स्टैंडर्ड का करिकुलम है, इट इज लाइक दिस. The first chapter is an introduction chapter. तो यहाँ पे माइक्रो मैक्रो दोनों इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे. सर व्हाट इज माइक्रो, व्हाट इज मैक्रो, 2 मिनट के बाद. चैप्टर नंबर 1 थ्रू आउट टिल चैप्टर नंबर 5 इज माइक्रो इको एंड चैप्टर नंबर 6 to 10 इज मैक्रो इकोनॉमिक्स. ना मैक्रो इज रिलेटिवली इजी, उसमें समझना काफी आसान होता है, कुछ खास याद रखने जैसा नहीं है. But micro is very interesting also and very technical also. मतलब you have to write everything and you have to remember all the points. Now you are going to love economics so much, and all of you are such good students that as I teach you, you are automatically going to remember the points because you like it so much. So no need of worries. The only thing you have to do is when you are watching video lectures or when you are in class, upright on a study table, on a chair, कान पे आपको हेडफोन्स लगा देने so that no one disturbs you, and you have to note down everything that I say. Carry A3 charts. What is an A3 chart? It is a huge double of A4 size. मतलब आपकी जो नोटबुक होती है उसका जो डबल साइज पेज होता है, वैसे चार्ट्स होते हैं. 1.5 रुपए 2 रुपए के स्टेशनरी की दुकान में मिलते हैं. बाय 100 ऑफ दोज. ओके, हम हर कंसेप्ट को मेगा चार्ट में डालेंगे. ओके, बाय स्टेंसिल्स, बाय प्रो सर्कल्स. बड़ा वाला सर्कल का स्टेंसिल होता है, वो बार बार एरोज और सर्कुलर फ्लो के लिए आपको लगेगा. बाय स्केल्स, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक पेन, बाय हाइलाइटर्स, मार्कर्स एंड ऑल द स्टेशनरी. इन एग्जाम you have to only use pencil and blue pen. That's it. Pencil, blue pen, and you can of course use stencil and whatnot. किसी को देना मत, शेयर मत करना एग्जाम में, ये हमारी सीक्रेट है. ओके, इन your home, in the classroom, you can use as many different colored pens as you want. Okay, so go ahead, buy it.
अगर आपके घर पे यूज करो, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो थोड़ा स्टेशनरी की दुकान में जाके अच्छे से सैनिटाइज करके उसको खरीद के यूज करना। ऑलराइट एवरीवन, चलो लेट अस डाइव इनटू द करिकुलम। तो I have been teaching economics for 15 plus years to CA/CS students, and I hope all of you know that when I was not a CA/CMA, I have been teaching 11th and 12th. तो 11th 12th को मैं last I think 17-18 years से सिखा रहा हूँ, उतना मुझे एक्सपीरियंस है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्टार्टिंग का पूरा एरिया मैं सिखाऊंगा आपको इन CA/CS क्लास। We have same but little bit modifications के साथ माइक्रो इको, that also I am going to teach। उसके lectures अलग है और ये 12th के lectures अलग है। Now dear students, before we dive into HSC curriculum of economics, I want you to watch this particular video जो मैं अभी यहाँ पे attach कर रहा हूँ in this video link only। ये वीडियो advanced economics का है, but listen to me just for a couple of minutes, understand the definition of economics propounded by Adam Smith, Dr. Alfred Marshall AC Pigou, Professor Lionel Robbins, JP Say, and Professor Paul A. Samuelson. I will repeat again. Adam Smith, Alfred Marshall, Adam Smith, Dr. Alfred Marshall, Professor Lionel Robbins, Professor Paul A. Samuelson। ये 4 different definition of economics chronologically, okay, as the definition has been created। First आप वो पढ़ोगे, do not note it down, just listen to the lecture and understand what I am trying to say। Only Professor Lionel Robbins definition you note down, just on the top margin, it is not part of curriculum। And once you are done with that, this lecture will resume। So go ahead, watch this, no need of noting it down, only Professor Lionel Robbins definition, top margin, okay? Please continue with that lecture। Students, economics क्या है? पहले हम history of definition of economics पढ़ेंगे, जो अभी actual में syllabus में बहुत थोड़ा सा है। पहले old curriculum में था, फिर change हो गया है, तो बहुत थोड़ा उन्होंने डाला है। What I am teaching you about history of economic definitions is too much as compared to curriculum, but let us go through it once। क्या पता उसके ऊपर एक आध MCQ आ जाए। सबसे पहले तो एवरीवन, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, कौन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। उन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था, और फिर हम आगे के डेफिनेशंस पढ़ेंगे। एक ओवरऑल व्यू देखते हैं इकोनॉमिक्स की। ये वर्ड इकोनॉमिक्स कहां से हमने डिराइव किया है? हाउसहोल्ड का जो ग्रीक वर्जन है, ओइकोनोमिया, which means household। यहां से हमने इकोनॉमिक्स वर्ड डिराइव किया है। Till 19th century, economics was known as political economy। The book name An Inquiry into Nature and Causes of Wealth of Nation, किसने लिखी थी ये? एडम स्मिथ ने 1776 में। ओके, दिस वाज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये रहे हमारे एडम स्मिथ, द ग्रेट एडम स्मिथ। एंड एडम स्मिथ इज नोन एज father of economics। He published the book The Nature and Causes of Wealth of Nations, and Adam Smith ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया। ब्लू मतलब कि नॉट इन सिलेबस, ब्लूइंग मतलब कि क्या? नॉट इन सिलेबस, तो एक्स्ट्रा। तो एडम स्मिथ ने क्या बोला कि इकोनॉमिक्स इज एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। व्हाई आर रिच नेशंस रिच? सो पुअर नेशंस, यू लुक एट देम एंड यू आल्सो स्टार्ट बिकमिंग रिच। द फोकस वाज वेरी नैरो। द फोकस वाज ओनली ऑन गुड्स, the focus was only on money, it was only on wealth, that too of nations, not individual wealth, we are talking about national wealth। तो बहुत ही नैरो, बहुत ही छोटी सी डेफिनेशन थी, बट पहली बार किसी ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन करके इकोनॉमिक्स एज अ डिफरेंट सब्जेक्ट क्रिएट किया था। एंड स्टूडेंट्स, ये देखो यहाँ पे मेरे बोर्ड में लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, और सबसे पहली वाली डेफिनेशन जो हमारे एडम स्मिथ ने दी थी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उसको हम क्या बोलते हैं? Science of Wealth definition by Adam Smith, father of economics, along with J.P. Say, 1776, और ये बुक का नाम है Nature and Causes of Wealth of Nations। Now students, हम economics की widely accepted definition में जा रहे हैं, and in order for us to understand that, मैं आपको एक छोटा सा example दूंगा। तो imagine कर लो कि result आ गया, it is the month of July 2020, और आप मेरिट में आ गए। ठीक है, मैंने वादा किया था that I'll give you 30,000 कैश। कितना कैश? 30,000। और ये 30,000 कैश मैंने आपको दे दिया। कड़क गांधी जी के नोट,
15 ना कैश में आपको दे दिया। मजाक कर रहा हूँ, आई गिविंग यू चेक, ऐसा इतना बड़ा चेक होगा, मैं ऐसे दूंगा, आप ऐसे लोगे, फेलिसिटेशन क्वेश्चन होगा इम्पोर्टेंट, बट मैंने आपको कैश दे दिया 30,000 का। स्टार्ट, बोलो क्या करोगे? यू कैन नॉट बाय बिग एसेट्स। डोंट टेल मी कि सर बजाज चेतक ले लिया, उसका डाउन पेमेंट कर दिया 1.2 लाख का, या तो फिर मैंने फ्लैट बुक किया है। नो बिग एसेट्स, यू हैव टू स्पेंड इट फॉर इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। You have to define it. किसी ने बोला शॉपिंग, शॉपिंग में क्या है? 30,000 है आपके हाथ में, बोलो। Yes my dear. Solo trip to the Himalaya. Solo trip with To the Himalaya. हिमालय से। क्या बात है, मतलब दिल की बात तुमने यहाँ छीनी। मेरी भी बाइक ट्रिप का प्लान है लेह लद्दाख में, सोलो ट्रिप अकेले मत जाना, ठीक है? पता नहीं कौन से जन्म में होगा, बट या सो माय डियर, हिमालयन ट्रिप पे चले गए, कितना खर्चा करोगे? कितना खर्चा होगा? Whole amount. डबल अमाउंट 30,000 हो जाएगा। देखो ट्रिप मजाक नहीं होती, 30,000 तो ऐसे आपका चला जाएगा, तो पूरा पैसा चला गया। तो ही कैन ओनली फुलफिल वन वांट, एनीथिंग एल्स? यस माय डियर। Inter में admission. सीए इंटर में एडमिशन, तो मैं बता दूं कि बाबा क्लास का जो फीस होता है इंटर का, वो 80,000 90,000 प्लस जीएसटी होता है। तो यू कैन ओनली ज्वाइन 2 सब्जेक्ट्स बिकॉज़ वन सब्जेक्ट इज फॉर 40-50,000। पर ठीक है, 2-3 सब्जेक्ट आपने ज्वाइन कर लिए, वेरी गुड, 30,000 में। व्हाट एल्स? यस कमला, रुचिता, यस शॉप, बट व्हाट? क्या? महिमा, यस यस यस, किसी ने कुछ बोला? ज्वेलरी, क्या बात है। तो माय डियर, ये इतनी सी छोटी सी बैंड में लगेगा 40-50 हजार रुपए की चीज है यार, इतना सा, इतनी सी है ना? तो आई रियली डोंट नो कि 30,000 में आप कितना ले पाओगे। सो ज्वेलरी लाखों रुपए की आती है, थोड़ी सी ले ली 30,000 में, नॉट वेरी सेटिस्फाइड, है ना? यस और नो? Yes, sir. नॉट वेरी सेटिस्फाइड, बट ले ली थोड़ी सी ज्वेलरी। और एक है One time investment in mutual funds. नो इन्वेस्टमेंट्स, नो नो नॉनसेंस, नो क्रैपी आंसर्स। एफडी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, नो नथिंग ऑफ दैट। यस, खर्चा करना है। बी यंग स्टूडेंट्स, बोलो। So नया phone लो. नया फोन, और माय डियर तुम तो जानते ही हो, छोटे से छोटा अच्छा फोन भी 50, 60, 1 लाख रुपए का आईफोन है ना, बहुत महंगे फोन आते हैं। तो एक छोटा सा फोन आ जाएगा 30 का, नथिंग बिग, है ना? तो एवरीवन, एक चीज हमें दिख रही है कि वी कैन डू अ लॉट विद 30,000, बट इट इज नॉट टू मच, इट इज नॉट गोइंग टू सैटिस्फाई ऑल माय वांट्स। सब कुछ सैटिस्फाई नहीं होगा। तो बोलो क्या क्या करेंगे हम? मूवीज के लिए जाएंगे भाई, राइट? थिएटर्स में जाएंगे, मॉल्स में जाएंगे, किसी ने बोला शॉपिंग करेंगे। आजकल जीन्स जो होती है, डेनिम जीन्स, वही 6-7 हजार रुपए की आती है। जो जैकेट्स होते हैं 20-30 हजार रुपए के होते हैं। क्या मैं आपको बताऊं, वो आईफोन होते हैं 1-1 लाख रुपए के। मे बी आप बाइक के कुछ एक्सेसरीज जैसे कि नए टायर्स खरीदोगे, मे बी यू विल बाय सम आईपैड, बट यू नो व्हाट, 30,000 में यू विल बी एबल टू बाय सर्टेन थिंग्स, बट नथिंग ग्रेट, मतलब यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट। कोई बोल रहा है पार्टी के लिए जाएंगे, तो यार पार्टी में भी यू नो एक बहुत छोटी सी पार्टी कर पाओगे यार, छोटी सी, थोड़ा सा खाना पीना, 10 फ्रेंड्स, दैट्स इट। कम ऑन यार, you cannot take your friends to Dubai on a party, yes or no? Yes. It is not that much money. So students, हम लोग ने क्या डिस्कवर किया है? 2 फंडामेंटल फैक्ट्स हमने देखे। नंबर 1, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आज मैंने शॉपिंग की, आज खाना खाया, तो कल वापस से शॉपिंग की तलब हो, कल वापस से मुझे और खाना लगेगा। अगर आज मैंने सेकंड हैंड टू व्हीलर ले ली, टीवीएस जुपिटर 30,000 की, आफ्टर 2 इयर्स यार नई बाइक लेने का मन करेगा। सही बात है कि नहीं एवरीवन? आज एक डीएसएलआर कैमरा ले लिया, तो आगे जाके वो मिररलेस कैमरास आ गए हैं, है ना? मुझे हाई फंडू नया कैमरा लगेगा, ये वाला डीएसएलआर पुराना हो जाएगा, उसमें वाईफाई नहीं है, तो इट इज नॉट गेटिंग कनेक्टेड टू माय मोबाइल डिवाइस, एंड यू नो आई कैन नॉट ट्रांसफर फोटोज। क्या स्टूपिड है इसमें, एसडी कार्ड स्लॉट है, यू नो, टाइम विल चेंज। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। एक वांट सेटिस्फाई होती है, दूसरी आ जाती है। वन गुड एग्जांपल इज, हाउ मेनी ऑफ यू रियली वुड लाइक अ नाइस टू व्हीलर अभी? A nice two-wheeler like a Bajaj Chetak, or you know, some electric vehicle, or maybe a bullet bike. Anyone would want a brand new two-wheeler right now? 1 lakh rupee. 1 lakh rupee. Do you think that it will really help you, or it will make you feel good? 1 lakh rupee. Yes. बहुत सारे yes बोल रहे हैं. So you buy that two-wheeler right now. The day you get your CACS degree, you will feel नहीं यार, नहीं यार, एक छोटी कार बनती है, एक Santro, एक i10, एक Wagoner, एक कार बनती है। जिस दिन Wagoner खरीदोगे ना, और आप देखोगे कि आपके जो सक्सेसफुल CACS फ्रेंड्स हैं,
उनके पास तो बड़ी बड़ी होंडा सिटी है, तो आपको होंडा सिटी लेने का मन करेगा। जिस दिन होंडा सिटी लोगे और मर्सिडीज C200 कॉम्प्रेसर देखेंगे, वो दिन लगेगा यार आई एम गरीब है। जिस दिन मर्सिडीज C200 कॉम्प्रेसर देखोगे, कोई एस क्लास मर्सिडीज लेके आएगा। जिस दिन एस क्लास लोगे, वो दिन लगेगा हेलीकॉप्टर क्यों नहीं है मेरा। एवरीवन, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यू आर नेवर सैटिस्फाइड। आपको हमेशा और ज्यादा चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज कि जो मींस है, जो रिसोर्सेज है, टू सैटिस्फाई दीस वांट्स दे आर रिलेटिवली स्केर्स, मतलब काफी थोड़े। चाहिए सब कुछ बट मिलता थोड़ा सा है। सही बात है कि नहीं? Yes, sir. तो दिस फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, और ये डेफिनेशन हमने दी थी प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स ने ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। उनकी बुक का नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स 1931। प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स ने बोला था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। सो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स इज द साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। क्या स्टडी करता है ये? Human behavior. मुझे फिर से बताओ, इकोनॉमिक्स इज द Science व्हिच studies human behavior. वेरी गुड। एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। अभी जस्ट डिस्कस किया ना दो चीज, रिसोर्सेज एंड वांट्स। सो एज अ रिलेशनशिप बिटवीन नंबर 1 एंड्स, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया वांट्स, एंड स्केर्स मींस मतलब कि रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इफ आई गिव यू टू व्हीलर राइट नाउ, you can use it to come to class, go to college also. You can put it in delivery business. You can be a Swiggy partner and you can deliver pizzas and food for money. There are alternative uses to resources. Yes or no, everyone? Yes, sir. If I buy a bike right now, I can give it to the academy because academy में हर दिन checks और various instruments हम यहाँ collect और transfer करते हैं, और I can use it personally also. So आपके पास जो resources है, you can have alternative uses. If I give you 1000 rupee right now, you can buy movie tickets or buy some food or recharge your mobile phone or buy some books. It has alternative uses. Yes or no, everyone? Yes. So tell me, Professor Lionel Robbins ने क्या बोला था? Economics is the Science. which studies Human behavior. Oh, so it is social science. As a Relationship between two things. Number 1, Ends. Number 2, scarce means. And scarce means have alternative uses. तो एक साइड पे तो वांट्स है, मतलब हमारी जरूरत है, और दूसरी साइड पे रिसोर्सेज जो हमारी जरूरतें पूरी करता है। और इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज को हम बोलते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, LLCE। दिस इज ओके एवरीवन? नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स की, प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स की। और जो लेटेस्ट डेफिनेशन है साइंटिफिक ग्रोथ एंड इसके पहले कि हम लास्ट डेफिनेशन में जाए, देयर इज अनदर डेफिनेशन व्हिच इज साइंस ऑफ मटेरियल वेलबीइंग व्हिच वाज प्रोपाउंडेड बाय द ग्रेट डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। हमारे फेवरेट एवरीवन, इनको हम फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे, और कोई नहीं बोलता, मैं बोलता हूं। अगर आप लॉ ऑफ डीएमयू देखोगे, किसने बनाया? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर सरप्लस, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ डिमांड, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। लॉ ऑफ सप्लाई, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। इक्विलिब्रियम प्राइसिंग थ्योरी, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। परफेक्ट कॉम्पिटिशन, डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो दे नहीं कर। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसने बनाया था बाबा ये लॉ, ये थ्योरी किसने प्रोपाउंड की थी? आंसर क्या है? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल। ठीक है ना एवरीवन? सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। So Dr. Alfred Marshall, the neoclassicists, raised economics from ignoble position to a noble one. It was he who shifted the emphasis from wealth to welfare. तो everyone, इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मुझे आपको एक बार क्विकली सीक्वेंस दिखा देना, और आप सीक्वेंस देख लो। सबसे पहले तो थे एडम स्मिथ। ध्यान से सुन लेगा। एडम स्मिथ ने क्या बोला था? Why are rich nations rich? और रिच नेशन की जो वेल्थ है कैसे क्रिएट होती है, और इनको क्रिटिसाइज किसने किया? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल एंड A.C. पिगू। यहां कौन थे? एडम स्मिथ एंड J.B. से। और यहां पे कौन थे? डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल एंड A.C. पिगू। और इन दोनों ने क्या बोला? दैट यू पीपल आर इडियट, तुम लोगों को अक्ल नहीं है। You people are completely focusing on wealth. डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल एक लेवल आगे गए, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स में we use money and resources to satisfy well-being of people. Okay?
तो पीपल बाय गुड्स जिससे उनका वेलबींग हो। और एवरीवन, इनकी जो बुक थी 1890 में लिखी थी, इसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जिस बुक से हमें लॉ ऑफ डीएमयू, कंज्यूमर सरप्लस, थ्योरी ऑफ यूटिलिटी मिला है, हमें लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई मिला है, इक्विलिब्रियम प्राइसिंग थ्योरी मिली है। तो हम ये बुक से पढ़ने वाले हैं। दिस इज फाइन एवरीवन। Yes. और डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल एंड एसी पिगू, इन्होंने भी बोला था कि यार इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। इकोनॉमिक्स टेल्स यू व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। Economic deals with well-being of human beings. Professor Lionel Robbins, Dr. Alfred Marshall और AC Piggott पे बहुत हंसे। उन्होंने बोला तुम लोग complete idiots हो। How can a science tell you what is right or wrong? Dr. Alfred Marshall, you are confusing economics with ethics. Professor Lionel Robbins ने बोला that economics is different than ethics. Economics does not tell you what to do, what not to do. It just tells you the state of the things. तो प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स ने साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग डेफिनेशन दी। उन्होंने बोला कि रिसोर्सेज लिमिटेड है और मेरी वांट्स अनलिमिटेड है, तो रिसोर्सेज को आपको यूटिलाइज करना है फॉर अर्जेंट वांट्स, नॉट सो अर्जेंट वांट्स शुड बी पोस्टपोन्ड। तो ये किसने बोला था? प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स। और प्रोफेसर पॉल ए सैमुअलसन ने लेटेस्ट डेफिनेशन दी इकोनॉमिक्स की। उन्होंने डेफिनेशन दी है साइंस ऑफ डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोफेसर पॉल ए सैमुअलसन ने बोला है that even though resources are limited, with human ingenuity and innovation you can increase the resources also. Professor Paul A. Samuelson ने बोला कि Professor Lionel Robbins, you only talk about scarcity, you do not talk about abundance. In economics there is also a problem of abundance. यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होटल में खाना लिया है बट कुछ खाना खाने को नहीं हुआ तो उन्होंने प्लेट में ऐसे ही छोड़ दिया, एटलीस्ट वंस इन देयर लाइफ में। प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस। कितनी कैलोरीज होनी चाहिए ह्यूमन बीइंग का कंजम्पशन पर डे? 2000 कैलोरी, 2200 कैलोरी ऑन एन एवरेज। I personally eat 3500 calories, as do many of us. I mean, come on. Yes or no? Yes. कभी कैलोरीज काउंट करके देखना। Most of us we consume lot of calories. जरूरत से ज्यादा हम कैलोरीज खा रहे हैं। अबंडेंस। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनके घर पे कार्स है जो डेली नहीं चलती? प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस। मेरे पास 3 कार्स थी एंड आई वाज लाइक क्या करने वाला हूं, फिर मैंने मर के एक को बेच दिया। अबंडेंस एवरीवन, है ना? आई हैव 3 टू व्हीलर्स, 3 मैं तीनों भी यूज नहीं करता, कभी तो भी यूज हो रहा था। समझ में आ रहा है एवरीवन आपको? सो देयर इज अ थिंग कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ अबंडेंस आल्सो इन इकोनॉमिक्स, जिसके ऊपर लाइट थ्रो किया प्रोफेसर पॉल ए सैमुअलसन ने। चलो मुझे फटाफट बताना, सबसे पहले डेफिनेशन किसने दी? एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगो ने बोला कि वेल्थ को यूज करना है फॉर मटेरियल वेलबींग। और प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स बहुत हंसे उन पे। अल्फ्रेड मार्शल और एसी पिगो ने बोला इकोनॉमिक्स इज नॉर्मेटिव, मतलब कि इकोनॉमिक्स हैज वैल्यू जजमेंट। प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स ने बोला इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव, मतलब कि इट डज नॉट हैव वैल्यू जजमेंट। एंड एवरीवन, प्रोफेसर पॉल ए सैमुअलसन ने बोला कि you can increase resources and you can use technology and human ingenuity to increase the resources if resources are in shortage. Like for example, रहने को जगह नहीं है तो build a skyscraper, 100 story skyscraper बना दो। खाने को food नहीं है, use chemical fertilizers to have high yield of crops. आ रहा है क्या समझ में? Yes. Okay. तो यहाँ पे हम लोग ने डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल को देख लिया। अब टाइम आ गया प्रोफेसर पॉल ए सैमुअलसन को देखने। सो स्टूडेंट्स, ये रहे प्रोफेसर पॉल ए सैमुअलसन। Although the fundamental economic problem of scarcity in relation to need is undisputed, उन्होंने बोला scarcity है, but it is not proper to think that economic resources, physical, human, financial, are fixed and cannot be increased. तो इन्होंने क्या बोला? Economic resources, physical, human, financial can be increased, and he is absolutely right. Human resource भी, labor भी increase हो सकता है। If you have shortage of labor, you can import labor from areas where there is unemployment, like India and China. जहाँ पे unemployment है वहाँ से labor को लेके आ जाना है, या तो वहाँ पे जाके productive facility set up करो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो loans ले लो, जिसके पास है उससे loans ले लो। And everyone, अगर physical resources नहीं है, like machines नहीं है तो machine को build करो ना, import करो, खरीदो उसको, manufacture करो machines को, right? He is absolutely right.
and it can be increased by human ingenuity, exploration, exploitation and development. That is why इनकी definition को हम बोलते हैं growth and development. Is this fine? But ये सब थोड़ा ज़्यादा ही है, थोड़ा out of curriculum है. यहाँ तक हो गया सबका? Nice. Now students, now that you are done with the definition of economics, let us dive into HSC curriculum. Now we are going back to HSC curriculum, okay? So let us see ki what is micro and what is macroeconomics. Just look at my chart. At my chart everyone. ध्यान से देख लो. तो economics का definition पढ़ने के बाद what are the two branches of economics? One micro and the other macro. अभी हम वो पढ़ने वाले, okay? I am diverting my focus to what is microeconomics and let us study this now. So students, we are now in HSC curriculum. We are in 12th standard curriculum. Let us focus and you have to note down all of this, okay? So in microeconomics, we study the economic behavior of an individual, a firm or industry in the national economy. इसका क्या मतलब हुआ students? ध्यान से सुनो. अगर मान लो आप लोग 30 students मेरे classroom में बैठे हो, and if I call out one of you, let us say that I call out Jignasa and I say Jignasa, you, tum, chalo, come over here to my cabin and show me your economics paper. And Jignasa has scored 100 upon 100 in economics paper, okay? तो मैं Jignasa के साथ बैठ के discuss कर रहा हूँ how she has scored very well marks and you know how I am very happy with her performance and how she can score 100 upon 100 in accountancy also etc. तो ऐसे में उससे अगर बात कर रहा हूं तो ये क्या हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि आई एम टॉकिंग टू एन इंडिविजुअल यूनिट. बट इफ आई टेल द एंटायर क्लास ऑफ 30 40 50 60 स्टूडेंट्स कि स्टूडेंट्स all of you have performed very well, we are going out for a movie, I'm taking you out for a movie and then we are going to have dinner together, okay? Veg वाले veg खाएंगे, non-veg वाले non-veg खाएंगे. So when I talk to all of you together and when I say that all of you have scored good marks and the average marks of the class are 90 plus, I'm talking and referring with you as a macroeconomic concept. Macro मतलब बड़ा, micro मतलब छोटा, micro मतलब पुणे, macro मतलब इंडिया, माइक्रो मतलब इंडिया, मैक्रो मतलब पूरी दुनिया, the entire world. Did you understand everyone? माइक्रो मतलब one student, मैक्रो मतलब the entire class of 60 students. Is this fine everyone? So micros means a small part. So tell me, microeconomics में हम क्या पढ़ते हैं? We study the behavior of individual, firm or industry. It is the study of a particular unit. It is a study of a particular tree, not the entire forest. Tell me students, what is microeconomics? It is the study of a particular tree, not the forest. मेरे साथ साथ बोलना है. It is a study of a tree, not the forest. All right, everyone. In microeconomics, we study the economic actions and behavior of individual unit. Not everyone. Only individual unit, individual household, individual company, individual firm, such as individual consumer. तो रामलाल ने कल जाके 20 बटाटा खरीदे, ओके? तो ये क्या हो गया? इंडिविजुअल कंज्यूमर की हम बात कर रहे हैं. इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज रिफाइंड 2000 metric tons of crude oil. So I'm talking about Reliance industry, not all the refineries, oil refineries in the world. Or of a firm, Edward Academy has currently 500 students. So I'm talking of one firm, Edward Academy. The price of a particular commodity, the price of 1 dozen Ratnagiri Hapus Aam, matlab Alfonso mango is rupees 600 per dozen, right? Or the price of a factor of production, etc. Now, etc. as a teacher I can use, you should not use, you should write and so on. Okay? Exam में क्या लिखोगे? Comma and so on. etc. मत लिखना, law में हम लिखते हैं और teachers बोल सकते हैं, students ने नहीं लिखना है. All right, students. ये जो टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स, दिस वाज कॉइन्ड बाय नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, मतलब नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे. इनका नाम था रैग्नर फ्रिश in 1933. और देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी डिटेल्स भी डाल दी. he was a Norwegian economist and he was the co-recipient of the first Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in 1969. So he has done great work in 1933 और इन्होंने माइक्रो और मैक्रो का स्टडी बाइफरकेट किया. अभी आपने मेरे लेक्चर देखे कि नहीं, एडवांस लेक्चर, एडम स्मिथ, प्रोफेसर लॉयनल रॉबिन्स एंड डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, ये लोग जब डिफाइन कर रहे थे इकोनॉमिक्स को, दे डिड नॉट सेग्रीगेट इट एज माइक्रो एंड मैक्रो, दे वर टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स एज अ होल. रैग्नर फ्रिश ने ये
इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन दिया है उसको स्प्लिट करके इनटू माइक्रो एंड मैक्रो. इज दिस फाइन एवरीवन? द टर्म माइक्रो इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड MIKROS which means small or a millionth part. Now listen to me carefully. मैं exaggerate नहीं कर रहा. In almost every alternate paper, Norwegian economist Ragnar Frisch 1933, true or false, match the pairs, या तो फिर फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है कि यार माइक्रो इकोनॉमिक्स किसने कॉइन किया, तो आंसर है नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट रैग्नर फ्रिश. ओके, ये भी आता है कि माइक्रोस इज डिराइव फ्रॉम डैश वर्ड, तो आंसर इज ग्रीक वर्ड. और डैश वर्ड क्या वर्ड है? MIKROS, माइक्रोस, व्हिच मींस डैश, इट मींस स्मॉल और अ मिलियंथ पार्ट. इज दिस ओके स्टूडेंट्स? बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस देखेंगे. सबसे पहले तो मॉरिस डॉब की डेफिनेशन. मॉरिस डॉब ने बोला है दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक. माइक्रोस्कोपिक मतलब वेरी माइन्यूटली यू ओनली लुक एट वन एंट, मतलब कि इंडिविजुअल यूनिट स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. सो बोलो क्या सिंपल डेफिनेशन दी है मॉरिस डॉब ने? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ इकोनॉमी. वापस से, व्हाट इज द डेफिनेशन? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी. यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया क्या? ये जो रैग्नर फ्रिश है ना, उनका पोर्ट्रेट नहीं बनाना है, वो मैंने बस नॉलेज के लिए यहाँ पे डाल दिया. ओके, जो डायग्राम्स बनाने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुने एवरीवन. एंड नाउ बिफोर आई मूव ओवर टू डेफिनेशन ऑफ प्रोफेसर AP लर्नर, आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम देखना है. लुक एट दिस डायग्राम डियर स्टूडेंट्स, और आप लोग सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनोगे अभी. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ये HSC में नहीं है, यहाँ पे ही मैं आपको बता रहा था कि मेरा इकोनॉमिक्स का नॉलेज काफ़ी अच्छा है, सो इट इज़ गोइंग टू रियली हेल्प यू. आई विल रिपीट अगेन, this diagram is not given in HSC book, but you will prepare it in exam and teacher is going to be very happy. डायग्राम में क्या नहीं करना, मैंने देखा यहाँ छोटे छोटे आदमी बनाए, वो मत बनाना. वहाँ पे सिर्फ लिख देना हाउस होल्ड और उसको ब्लॉक करना. और यहाँ पे मैंने फैक्ट्रीज बनाई, फैक्ट्री मत बनाना, मैंने मजाक में बनाया सो दैट यू रिमेंबर द डायग्राम. वहाँ पे आप फर्म्स या बिजनेस लिख के उसको ब्लॉक करना है. कैरियर स्टेंसिल, स्टेंसिल समझते हैं ना, उसमें बहुत सारे सर्कल्स, स्क्वायर्स और ट्रायंगल्स होते हैं, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन एग्जाम, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ओके, now I am teaching you circular flow of resources and income. ध्यान से सुनो everyone. स्टूडेंट्स, जो हाउस होल्ड होते हैं, हाउस होल्ड मतलब कि आपका और मेरा घर, हम हाउस होल्ड्स क्या करते हैं जरा मुझे बताना. हम लोग सब बहुत मेहनत करके बहुत सारा पैसा सेव करते हैं, और ये जो सारा पैसा हम सेव करते हैं इसको हम पास ऑन करते हैं किसको? फर्म्स एंड बिजनेसेस को. मेरी बात आप ध्यान से सुनोगे. हाउस होल्ड क्या करते हैं एवरीवन? वी सप्लाई इनपुट्स. क्या सप्लाई करते हैं हम? इनपुट्स. इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. 2 मिनट में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और आगे के एक चैप्टर में बहुत डेप्थ में पढ़ना है. ओके, सो लैंड हम प्रोवाइड करते हैं क्योंकि हम ओनर्स ऑफ लैंड होते हैं. नंबर 2, हम लेबर प्रोवाइड करते हैं, मतलब हमारे घर के लोग जाके ये वेरियस फर्म्स और ऑफिसेज में काम करते हैं. नंबर 3, हम कैपिटल मतलब कि पैसा प्रोवाइड करते हैं. आप बोलोगे सर कैसे प्रोवाइड करते हैं? सी देयर इज अ प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. हमारे घर पे जो भी पैसा होता है हम उसको बैंक अकाउंट या शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स में डालते हैं. ये जो सारे इंटरमीडियरीज होते हैं, बैंक, शेयर मार्केट, ये पैसा पास ऑन करते हैं टू फर्म्स एंड बिजनेसेस. बैंक लोन देते हैं और शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट्स तो डायरेक्टली इक्विटी और प्रेफरेंशियल्स इशू करने में और डिबेंचर इशू करने में हेल्प करती है, राइट? वो लोग तो डायरेक्टली पैसा देते हैं. तो ये सारे इंटरमीडियरीज के थ्रू हम क्या क्या देते हैं मुझे बताना. हम लोन्स देते हैं, हम इक्विटी देते हैं, मतलब कि शेयर कैपिटल में हम इन्वेस्ट करते हैं, प्रेफरेंशियल्स हम देते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, टेल मी अगेन, क्या क्या हाउस होल्ड देता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंड द लास्ट वन इज एंटरप्राइज. एंटरप्राइज मतलब बिजनेस ओनर. अब जो मेरा हाउस होल्ड है उसने एडवर्ड एकेडमी को बिजनेस ओनर दिया ना, आई एम द ओनर ऑफ एडवर्ड एकेडमी. सही बात है कि नहीं? ऑन दी अदर हैंड, मैं और बहुत सारे हाउस होल्ड एडवर्ड एकेडमी को लेबर देते हैं. हमने एडवर्ड एकेडमी को लैंड दिया है जिसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी है, और जो बिल्डिंग है और ये जो कंप्यूटर इक्विपमेंट, कैमरा है, सॉफ्टवेयर है जिससे मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो मेरा केबिन है, जो AC मैंने यहाँ पे ऑन किया है, ये सब कैपिटल है. इज दिस फाइन एवरीवन? तो टेल मी अगेन, मुझे बताना कि हाउस होल्ड क्या सप्लाई करते हैं फर्म्स और बिजनेसेस को? LLC. क्या सप्लाई करते हैं? LLC, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. ओके,
और ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज को यूज करते हैं टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज। बोलो, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज ये इनपुट से क्या मैन्युफैक्चर करते हैं ये लोग? गुड्स एंड सर्विसेज। बुक्स, वेजिटेबल्स, मैंगोज, apples, bananas and stationery and video cameras and laptops and cars and two-wheelers and you name it, and they manufacture it, right? They also provide you service in form of banking, transport, teaching, education, etc. तो इसके बदले में ये लोग हमें क्या देते हैं? RWIP, LLC, RWIP। टेल मी अगेन, फटाफट मुझे बताना कि L मतलब कि क्या? लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज। लैंड के बदले में क्या मिलता है? रेंट। लेबर के बदले में वेजेस। कैपिटल के बदले में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर के बदले में क्या मिलता है? प्रॉफिट्स। तो RWIP। तो ये जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये हमें रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट्स ये हमें देते हैं। इज दिस फाइन एवरीवन? और ये जो मार्केट होती है इसको हम बोलते हैं रिसोर्स मार्केट और फैक्टर मार्केट। ओके, फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब LLC और रिसोर्स मतलब LLC। तो रिसोर्सेज और फैक्टर कौन देता है? बोलो, हाउस होल्ड। और उसके बदले में पेमेंट कौन करता है? फर्म्स या बिजनेसेस। एकदम क्लियर है? नेक्स्ट प्रोसेस, जो फर्म बिजनेसेस होती है ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। मेरे को फटाफट बताना है लोग क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? दे मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज हमें देते हैं और हम उसके बदले में उनको क्या देते हैं? हाउस होल्ड स्पेंडिंग। अब यार जो पैसा कमाते हो उसको खर्च तो करते हो ना, तो किसको पैसा देते हो आप? रिलायंस जियो का सिम कार्ड लेते हो, सैमसंग का जाके फोन खरीदते हो, एप्पल का फोन खरीदते हो, एडवर्ड अकेडमी में क्लास ज्वाइन करते हो, तो यहाँ पे आप पैसा देते हो ना बिजनेसेस को। तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग आर फर्म्स इनकम। इज दिस फाइन एवरीवन? और इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट में गुड्स भी आते हैं और सर्विसेज भी आती है। इजी एवरीवन? सो चलो मुझे फटाफट बताना कि हाउस होल्ड्स बिजनेसेस को क्या देते हैं? हाउस होल्ड्स बिजनेसेस को फैक्टर्स देते हैं, मतलब कि लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज। उसके बदले में हाउस होल्ड को क्या इनकम मिलता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। एंड हाउस होल्ड क्या खरीदते हैं फर्म बिजनेस से? मतलब फर्म बिजनेस उनको क्या देती है? गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हम उनको क्या देते हैं? हाउस होल्ड इनकम एंड उनका रेवेन्यू। मतलब कि हमारा खर्चा हो जाता है, हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, उनको पैसा देते हैं और फर्म्स का वो इनकम हो जाता है। इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? LLC मतलब कि फैक्टर मार्केट और गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केट को हम प्रोडक्ट मार्केट बोलते हैं। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली ओके। दिस डायग्राम इज गोल्डन डायग्राम। इसको बना के लो, एक बार नहीं 100 टाइम्स, अच्छे से बड़े शीट में ठीक से बना के लो। हेडिंग क्या है इसका? सर्कुलर फ्लो ऑफ रिसोर्सेज एंड इनकम। ऑलराइट, आई थिंक यू आर एबल टू कोरिलेट बिकॉज रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट रियल लाइफ। नाउ वी आर वेल equipped to study Professor Lerner's definition. Okay, so Professor A.P. Lerner ने हमें बोला है microeconomics consists of looking at the economy through a microscope। मतलब कि एकदम नैरो व्यू, मतलब कि इंडिविजुअल यूनिट को आप पढ़ रहे हो as it were to see how the millions of cells in the body of the economy। तो स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो इट कंसिस्ट्स ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्मॉल स्मॉल सेल्स, राइट? आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ना एवरीवन। तो माइक्रोस्कोप में क्या देखते हैं? सेल्स देखते हैं ना, छोटे छोटे। तो वैसे ही जो पूरी इकोनॉमी होती है उसकी बॉडी के सेल्स आप माइक्रोस्कोप से देखते हो, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। एंड टू सी हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ इकोनॉमी, मतलब कि नंबर 1 इंडिविजुअल और हाउस होल्ड आर कंज्यूमर्स। अभी तो आपको बताया ना मैंने, ये डायग्राम इसी के लिए तो सिखाया था कि जो हाउस होल्ड एंड इंडिविजुअल्स है, बोलो ये लोग क्या है? दीज आर कंज्यूमर्स। And everyone, on the other hand, we have individual or firms which are producers। तो इंडिविजुअल्स मतलब सोल प्रोप्राइटर्स, HUFs होते हैं, पार्टनरशिप बिजनेसेस होते हैं, या तो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है जिसको हम इकोनॉमिक्स में फर्म्स बोलते हैं, राइट? तो ये सब प्रोड्यूसर्स होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हमें बनाते हैं। दीज बोथ प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म। इज दिस ओके एवरीवन? तो ये डेफिनेशन आपको पूरी बाय हार्ट करनी पड़ेगी और आई होप आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म बिजनेस समझ में आ गया। एंड वापस से डेफिनेशन बाय हार्ट करेंगे। आप ऑब्जर्व करो, मैंने डेफिनेशन को पॉइंट वाइज लिखा है, पूरा पेपर पॉइंट वाइज लिखना है, नोट्स भी पॉइंट वाइज बनाने हैं डियर स्टूडेंट्स। ऑलराइट, नोट्स पॉइंट वाइज बनाने, नहीं तो याद नहीं रहेगा।
और एग्जाम में सर हम कैसे हाईलाइट करें कि हाइलाइटर तो यूज नहीं कर सकते, ग्रीन पेन भी यूज नहीं कर सकते, तो यू हैव टू राइट इन अपर केस एंड यू हैव टू डबल अंडरलाइन, ओके एवरीवन, विद पेन ओनली, तो वो हाईलाइट हो जाएगा पॉइंट. सो टेल मी, प्रोफेसर एपी लर्नर ने क्या कहा है? माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट्स ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप. क्या देख रहे हैं हम? हाउ द मिलियंस ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी, नंबर वन, एक साइड पे इंडिविजुअल हाउस होल्ड विच आर कंज्यूमर, एंड नंबर टू अदर साइड पे इंडिविजुअल और फर्म विच आर प्रोड्यूसर. बोथ दे डू व्हाट? दे प्ले देयर पार्ट इन द वर्किंग ऑफ द होल इकोनॉमी ऑर्गेनिज्म. इज दिस ओके एवरीवन? तो टेल मी, हम इकोनॉमिक्स को, मतलब इंडिया की या वर्ल्ड की इकोनॉमी को किससे कंपेयर कर रहे हैं? ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म से. और हम ऑन द अदर हैंड इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो टेल मी, यहां पे हम क्या कर रहे हैं? जो इंडिया है या वर्ल्ड इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी को कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म से. और जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, मतलब वन इंडिविजुअल यूनिट, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं मिलियंस ऑफ सेल से. इज दिस ओके एवरीवन? और एक साइड पे कौन है बोलो? हाउस होल्ड और इंडिविजुअल्स विच आर कंज्यूमर्स, और एक साइड पे कौन है? इंडिविजुअल्स और फर्म्स विच आर प्रोड्यूसर्स. इज दिस एब्सोल्युटली ओके एवरीवन? तो ये पूरा डायग्राम बना के लेना है और ये वाली पूरी आपको डेफिनेशन लिख के लेनी है. स्टूडेंट्स, वी आर नाउ मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. और अब जरा ध्यान से देख लो यार, ये चार्ट बनाने में मेरे को 1 घंटा लग गया. यू विल नॉट बिलीव इट, 1 आवर मुझे लगा है. कैन यू सी दिस चार्ट स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू? अभी और शार्प हो जाएगा. यस, सो कैन यू सी दिस चार्ट? इसको जूम आउट करके भी दिखाऊंगा. इसको आपको एक कलर्ड प्रिंट आउट भी मिलेगा जैसे लाइव क्लास शुरू हो जाएगी. ओके और अगर नहीं शुरू हो पा रही लाइव क्लास और कुछ हफ्तों तक, तो आई एम गोइंग टू गिव यू पीडीएफ फाइल्स ऑफ ऑल ऑफ दिस. यू कैन टेक बिग बिग प्रिंट आउट्स. आई विल गिव यू ऑल द डेटा. आई एम गोइंग टू गिव यू प्रिंटेड नोट्स ऑल्सो, जो नोट्स से मैं आपको सिखा रहा हूं. तो लुक एट द स्क्रीन स्टूडेंट्स. अब हम क्या पढ़ने वाले? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्कोप में 3 पार्ट्स है. टेल मी, क्या 3 पार्ट्स है? अभी जूम इन कर रहा हूं, इसको बड़ा कर रहा हूं. ठीक है, नंबर 1, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. नंबर 1, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. नंबर 2, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग. एंड नंबर 3, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. फिर से बताओ चलो. नंबर 1, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, मतलब कि जो प्रोडक्ट होते हैं इंडिविजुअल, उसको प्राइसिंग कैसे करते हैं. नंबर 2, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, फैक्टर्स जो होते हैं LLC, उसका प्राइसिंग कैसा होता है. एंड द थर्ड वन इज थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द बेस्ट, for the maximum satisfaction of the people of the economy. When I say the economy, I'm talking about India or the world as a whole. Okay, I am diverting my attention to point number 1, theory of product pricing. और जरा डिटेल नोट से पढ़ेंगे. ध्यान से सुनो अभी एवरीवन. The price of an individual commodity is determined by market forces of demand and supply. Tell me, price कैसे determine होता है? Number 1, market forces. मार्केट फोर्सेस मतलब कि क्या? नंबर 2 ध्यान से सुनो. मार्केट फोर्सेस मींस नंबर 1 डिमांड, नंबर 2 सप्लाई. डिमांड मींस व्हाट कंज्यूमर्स वांट एंड आर विलिंग टू बाय. सप्लाई इज व्हाट प्रोड्यूसर्स वांट टू सेल. इज दिस फाइन एवरीवन? सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद, ये देखो, नंबर 1 डिमांड एनालिसिस मतलब कि इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड नंबर 2 सप्लाई एनालिसिस मतलब कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर. आगे का करिकुलम ही है, आगे के टॉपिक का नाम है डिमांड सप्लाई, तो वो टाइम पे इन डेप्थ पढ़ेंगे, समझ में आएगा. एंड एवरीवन, यहाँ पे देखो मैंने छोटे छोटे कर्व्स बनाए, एक है डिमांड कर्व और एक है सप्लाई कर्व. अभी समझ में नहीं आएगा, जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा. इज दिस ओके एवरीवन? सो टेल मी, प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब कि क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स अस विद इक्विलिब्रियम प्राइसिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल. इसी के लिए डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल का ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन देखने के लिए बोला थोड़ा टाइम पहले. डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने डिमांड एनालिसिस और सप्लाई एनालिसिस इन हिज बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में ये उन्होंने थ्योरी दी थी, और डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस को यूज करके इक्विलिब्रियम प्राइसिंग थ्योरी उन्होंने डिफाइन की थी कि कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट. मुझे मालूम है आपको काफी वर्ड समझ में नहीं आ रहे, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे. चलो अब जरा मेरे चार्ट में जाते हैं और जरा मेरे चार्ट से थोड़ा ब्रीफली इसको पढ़ते हैं. तो टेल मी, व्हाट इज द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? नंबर 1, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग. प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम क्या करते हैं कि जो प्राइस होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, द प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है बाय द मार्केट फोर्सेस. अच्छा स्टूडेंट्स, मार्केट फोर्सेस मतलब कि क्या? नंबर 1 डिमांड एंड नंबर 2 सप्लाई. डिमांड और सप्लाई को हम मार्केट फोर्सेस बोलते हैं. डिमांड मतलब कंज्यूमर बिहेवियर जो खरीद रहा है, और सप्लाई मतलब सप्लाई बिहेवियर जो आपको सेल कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है.
एंड एवरीवन कैन यू सी मैंने डिमांड और सप्लाई कर्व, ये देखो ये रहा डिमांड कर्व, ये रहा सप्लाई कर्व, मैंने दोनों कर्व्स को एक साथ ओवरलैप कर दिया, तो जहां पे ये कर्व्स इंटरसेक्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब कि द मार्केट प्राइस विच इज डिटरमाइंड बाय अ फ्री मार्केट इन अ लाइसेंस फेयर एनवायरनमेंट, मतलब कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आगे के टॉपिक का नाम ही डिमांड सप्लाई, वो टाइम पे पढ़ेंगे। नंबर 2, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। अब ये फैक्टर प्राइसिंग क्या है, चलो जरा हम पढ़ लेते हैं। Now, students, before I go to factor pricing, I'm going to briefly explain to you what are the 4 factors of production. Number 1, land. बिजनेस करना है तो लैंड तो लगेगा, लैंड आर ऑल फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, और लैंड यूज करने के लिए हम क्या पेमेंट करते हैं? दूसरे आदमी को रेंट पे करते हैं, लैंड के ओनर को। नंबर 2, लेबर। लेबर मतलब कि ब्लू कॉलर्ड मजदूर भी और व्हाइट कॉलर्ड मेरे जैसे लोग भी जो एसी ऑफिसेज में बैठते हैं, लाइक सीएस, अकाउंटेंट्स, बैंकर्स एक्सेट्रा, तो ये सब लेबर में आते हैं। लेबर को क्या रेम्यूनरेशन देते हैं? वेजेस। ऑलराइट, नाउ इकोनॉमिक्स में सैलरी एंड वेजेस दोनों को ही हम वेजेस बोलते हैं। ऐसा मत सोचो यार लेबर मतलब कि एडी सर ने लेबरर की हैट पहनी हुई है, नॉट नेसेसरली, वैसे भी लेबरर्स होते हैं और हमारे जैसे भी लेबरर्स होते हैं जो एसी ऑफिसेज में बैठते हैं, राइट। देन एवरीवन, नंबर 3 इज कैपिटल। कैपिटल मतलब कि पैसा, मनी, सारी मशीन्स और सारे इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, ये सब कैपिटल में आते हैं। उसको यूज करने के लिए आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, मतलब आप लोगों से पैसा लेते हो तो यू हैव टू पे देम इंटरेस्ट। एंड द लास्ट वन इज एंटरप्राइज, द एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur is the mixer of the ingredient, the most important factor of production, human mind, जो business create करता है। देखो स्टूडेंट्स, रात को ऐसी लैंड से हाथ निकलता है और मुंह निकलता है और बोलता है चलो लेबरर लेट अस स्टार्ट फैक्ट्री एंड लेट अस स्टार्ट प्रोडक्शन। ऐसा नहीं होता भाई। मुकेश अंबानी को आके ये सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा करके बिजनेस शुरू करना पड़ता है, दैट इज एंटरप्राइज। और एंटरप्राइज में टेक्नोलॉजी भी इंक्लूड होती है, तो उसके बदले में हम क्या पेमेंट करते हैं? एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट्स पे करते हैं। सो टेल मी व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और उसके बदले में पेमेंट क्या होता है? RWIP, रेंट, लेबर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। सही बात है कि नहीं एवरीवन? चलो अब मुझे एक बात बताना कि फैक्टर प्राइसिंग कैसे काम करता है। हम बिजनेस में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज को डालते हैं और इससे हम प्रोडक्शन एक्टिविटी करते हैं, और प्रोडक्शन से क्या आउटपुट मिलता है हमें? गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से मेरी बात सुनो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो लैंड, लेबर और कैपिटल, एंटरप्राइज है ना, इसको हम बोलते हैं इनपुट्स। बोलो क्या बोलते हैं हम इसको? इनपुट्स। इनपुट्स को आप प्रोडक्शन प्रोसेस में डाल देते हो तो इनपुट्स का प्रोसेसिंग होता है, और प्रोसेसिंग से बाहर हमें क्या मिलता है? बोलो आउटपुट। गोल्डन इंफॉर्मेशन लिख के दे रहा हूं मैं आपको, ये सब टेक्स्ट बुक्स में इतना अच्छा नहीं लिखा होता। ओके, सो टेल मी व्हाट आर द इनपुट्स इन इकोनॉमिक्स? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। इनपुट्स को हम प्रोडक्शन प्रोसेस में डालते हैं और हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। आउटपुट किस फॉर्म में मिलता है? बोलो गुड्स एंड सर्विसेज। ओके एवरीवन, तो इसका डिस्कशन अभी हमने काफी बार कर दिया है, अभी मैं आगे जा रहा हूं। सो theory of factor pricing में in microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur or enterprise are the factors of production which contribute to production, and microeconomics helps in determining the factor reward, मतलब कि RWIP, rent, wages, interest and profit. Is this fine everyone? चलो वापस से अभी हमारे short diagram में जाते हैं and tell me what are the 4 factors of production? Land, labor, capital, enterprise. इसका reward कौन determine करता है? It is determined by microeconomics, और इसको हम बोलते हैं थियरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। इज दिस फाइन एवरीवन? चलो मैं आगे जा रहा हूं। द थर्ड पॉइंट, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब कि कितने एफिशिएंटली, कितने प्रॉपरली आप रिसोर्सेज को एलोकेट कर रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। प्रॉब्लम ये होता है इकोनॉमीज के अंदर, मतलब कंट्रीज के अंदर, कि रिसोर्सेज तो है बट सबको नहीं मिल रहे। लाइक फॉर एग्जांपल, किसी के पास इतना पैसा है दैट दे हैव परचेस्ड 10 कार्स, किसी के पास इतना पैसा है दे हैव परचेस्ड 5 कार्स, किसी के पास इतना भी पैसा नहीं कि एक भी कार खरीदे। इज दैट नॉट अनफेयर? इन रियल लाइफ क्या होता है स्टूडेंट्स? मान लो इकोनॉमी में 100 लोग हैं, हाउ मेनी पीपल? 100, एंड यू हैव 100 कार्स, तो 100 लोग को 100 कार्स मिलनी चाहिए, मतलब ईच पर्सन को 1 कार। बट इन रियलिटी क्या होता है? 90% लोगों के पास एक भी कार नहीं होती और सारी 100 कार रिमेनिंग 10 लोगों के पास होती है। इसको हम कहते हैं इनइक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ।
some are haves which have a lot of money, some are haves not which do not have anything. These are poor people everyone, उनके पास कुछ भी नहीं होता. तो efficiently resources को कैसे allocate करें, यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एफिशिएंसी की हम बात कर रहे हैं. नंबर 1 एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब कि हाउ टू प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विस विद लिमिटेड रिसोर्स. Number 2, efficiency in consumption, how to distribute in such a way so as to maximize the total satisfaction of society. मतलब हर पर्सन को एक एक प्रोडक्ट मिलना चाहिए, हर पर्सन को 2 रोटी मिलनी चाहिए. And how to achieve overall economic efficiency, मतलब कि only produce those goods which are desired by people. होता क्या है, people desire food, people desire medicine and people desire clothing, but हम मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, बड़े बड़े शिप्स, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट. अरे वो लोग नहीं मांग रहे, लोग खाना और दवाई मांग रहे हैं, लोग कपड़ा पहनने को मांग रहे हैं. यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आती है डियर स्टूडेंट्स. अगर मान लो मेरे पास बहुत सारा रिसोर्सेज है टू मैन्युफैक्चर, लेट अस से टू डिस्टिल अल्कोहल, ओके, तो अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग के रिसोर्स है. कोरोना वायरस का पेंडेमिक आ गया, 3 महीने तक लॉकडाउन हो गया. दारू किसी को चाहिए? नो, दारू पी के कोई जिंदा रहता है ऐसा नहीं है, बिना अल्कोहल के भी लोग जिंदा रहते हैं. बट सैनिटाइजर और हैंड सोप्स चाहिए. यस, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, ए भाई अल्कोहल मत मैन्युफैक्चर करो, सैनिटाइजर्स और हैंड सोप मैन्युफैक्चर करो. तुम लोग बाकी के जीन्स और फटे हुए डेनिम मैन्युफैक्चर मत करो, मास्क मैन्युफैक्चर करो जिससे लोगों को हेल्प होगा. सही बात है कि नहीं डियर स्टूडेंट्स, राइट? So you have to manufacture those goods which are desired by the economy, not utpatan luxurious goods. डायमंड को खा के हम जिंदा नहीं रहेंगे, हम रोटी खा के जिंदा रहेंगे. तो रोटी मैन्युफैक्चर करनी चाहिए, राइट? अब इसको जरा मेरे चार्ट में देख लेते हैं, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर. अब जरा ध्यान से सुन लो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ. थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बताती है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बताता है हाउ टू डील एफिशिएंटली इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. और इसमें 3 डिफरेंट हम टेक्निक्स की बात कर रहे हैं. सबसे पहले तो एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, मतलब कि कैसे मैक्सिमम प्रोडक्शन करना है. ये देखो यहाँ पे हमने मैक्सिमम प्रोडक्शन किया बच्चों के लिए, तो काइट उड़ा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. नंबर 2, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, हर पर्सन को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर पर्सन को गुड्स डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. कैन यू सी यहाँ पे 5 आइसक्रीम है और 5 यंग किड्स खा रहे हैं आइसक्रीम, तो हर बच्चे को एक मिल रहा है. ऐसा नहीं कि एक 5 खा रहे हैं और 4 भूखे रह रहे हैं, दैट इज रॉन्ग. And the third one is overall economic efficiency, produce the goods which are desired by the people so that people become satisfied and happy. Is this fine everyone?